Welcome students. So we started oscillation chapter and 2 lectures are completed of oscillation. Now in today's class we are going to solve some solved example from your textbook. So let's see example 5.2. So first I will read the problem. A particle performs linear SHM of period 4 seconds and amplitude 4 centimeter. Find the time taken by it to travel a distance of 1 centimeter from the positive extreme position. So here a particle performs linear SHM of period 4 seconds and amplitude is 4 centimeter. Okay. So let's see what they have given us. Example 5.2. See here, t is 4 seconds, so period is 4 seconds. Next, amplitude is 4 centimeter. Here the particle is performing SHM from the positive extreme position. So we know that this is mean position and this is the positive extreme position. So from positive extreme position it is covering 1 centimeter distance. So when we measure the displacement, so that displacement we measured from the center. Okay, ये जो center है वहाँ से हम एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं. तो यहाँ से पार्टिकल ने मोशन चालू किया है, वो जो डिस्टेंस कवर किया है 1 सेंटीमीटर. ये O टू A जो डिस्टेंस होता है दैट इज एम्पलीट्यूड, A फॉर एम्पलीट्यूड. एंड हियर लेट अस कंसीडर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज P. So basically we have to find first x. So what is x here? That is A minus 1 centimeter. Why A minus 1 centimeter? A क्या है? एम्पलीट्यूड है. तो एम्पलीट्यूड कितना है? 4 है. एंड जो डिस्टेंस हमें बताया गया है यहाँ से यहाँ तक का पार्टिकल का, तो वो 1 सेंटीमीटर है. सो वी हैव 3 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ x. सो इन दिस प्रॉब्लम we have to find small t. What is small t basically? See here, यहाँ पे capital T क्या होता है? The time required to complete one oscillation, that is period of oscillation, वो हम capital T से डिनोट करेंगे. Small t क्या होता है? पार्टिकल को जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम जो लगता है वो क्या होता है? स्मॉल t होता है. इस प्रॉब्लम में पार्टिकल ने मोशन पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया है. दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम, दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम एंड दिस इज द मीन पोजीशन. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्रॉब्लम में मेंशन किया है, कितना है? 1 सेंटीमीटर. बट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस डिस्टेंस इज x. सो हाउ वी कैन फाइंड x? दिस इज a minus 1 centimeter. So therefore we have 3 centimeter. Okay. So we have to find t. See, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला है x का हमने डेरिवेशन निकाला था. x is the displacement of the particle performing linear SHM. So the displacement x is a sin omega t plus phi. So this is the equation which we derive for the displacement of the particle performing linear SHM. Okay. So यहाँ पे जो पार्टिकल linear SHM परफॉर्म कर रहा है वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से. सो फॉर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन द फाई इज, जो फाई का वैल्यू है दैट इज पाई बाई 2. ओके. एंड ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होता है? 2 पाई बाई टी. सो जस्ट पुट दिस वैल्यूज. ओके. सो वी हैव x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू टी प्लस पाई बाय 2. ओके. सो यहाँ पे हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूशन किया है.
सो एक्चुअली अभी जो x का वगैरह वैल्यू है वो अभी बाकी है, वो अब हम पुट करेंगे. सो x इज 3, a इज 4, साइन 2 pi. What is capital T here? That is 4 second. Small t plus pi by 2. ओके. सो यहाँ पे जो 4 है ये डिवीजन में चला जाएगा. सो दिस विल बी 3/4. ओके, 3/4. नाउ साइन दिस विल बी 2 to the 4 pi t by 2 plus pi by 2. Okay, so now here you have to understand that there is one formula which we used when we were deriving this equation. That time sin 90 plus theta, sin 90 plus theta is cos theta. See here, this is sin. Pi by 2 means 90. Sin 90 plus theta. So we have to take cos theta. Theta का वैल्यू क्या है यहाँ पे? pi t by 2. So this will be 3/4 cos pi t by 2. Okay, pi t divided by 2. Now ये जो cos है यहाँ आने के बाद हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 3/4 here pi t by 2. ये जो 3/4 है इसका जब हम डिवीजन करेंगे सो दिस विल बी 0.75. ओके, यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि 3 को डिवाइड नहीं कर सकते हम. सो 30 होने के बाद 4 7 are 28 एंड 20. सो 4 5 are 20. सो यहाँ पे पाई t डिवाइडेड बाय 2 है. अभी जो cos इनवर्स 0.75 है वो अब हम लॉग टेबल में दिखेंगे. cos इनवर्स 0.75. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 41 डिग्री 41.4 डिग्री. ओके, सो दिस इज 41.4 degree. So you have to check this value in log table. Cos inverse value is this, and here is pi t by 2. See, this is value in degree. Now we have to convert this value in rad. ये जो डिग्री का जो वैल्यू है उसे जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. Okay, so we have to multiply this by pi by 180. Okay, and here is pi t by 2. Actually we are finding small t, therefore I will write this as 41.4 into pi divided by 180. ये 2 यहाँ आने के बाद ऊपर जाएगा और पाई नीचे. So this pi and this pi will get cancel. डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन करने के लिए हमें पाई बाय 180 से क्या करना पड़ा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा है. ओके, ये 2 से अब डिवाइड हम करेंगे. सो यहाँ पे मिलेगा 90. सो वी हैव स्मॉल t इज इक्वल टू 41.4 डिवाइडेड बाय 90. Okay, so for this you have to use log table. Okay, after using log table finally we get 0.46 second. Okay, 0.46 second ये वैल्यू हमें मिलता है. So this is the time, that is 0.46 second. Okay, for this you have to use log table. Now see next problem.
So example 5.3. A particle performing linear SHM with period 6 seconds is at the positive extreme position at t is equal to 0. The particle is found to be at distance of 3 cm from this position at time t is equal to 7 seconds. Before reaching the mean position, find the amplitude of SHM. एम्पलीट्यूड यहाँ पे फाइंड करने का है. पीरियड कैपिटल T का वैल्यू 6 है. ओके 3 जो है वो डिस्टेंस यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन से हमें दिया गया है. सी हियर पीरियड इज 6 सेकंड. ओके पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल T. पीरियड इज 6 सेकंड. नेक्स्ट एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमें फाइंड करने का है. ओके एंड स्मॉल t का वैल्यू दिया है 7 सेकंड. यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है 3 सेंटीमीटर. ओके डिस्टेंस कितना दिया है हमें 3 सेंटीमीटर. ओके हियर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन. सो लास्ट टाइम हमने जिस तरह से P दिखाया था, मीन पोजीशन को O दिखाया था. सो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है एम्पलीट्यूड होता है. यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल आया है वो डिस्टेंस कितना है 3 है. लेकिन जब भी हम डिस्प्लेसमेंट x मेजर करते हैं तो वो क्या होगा a माइनस गिवन डिस्टेंस. तो जो डिस्टेंस दिया है वो 3 सेंटीमीटर है. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड से माइनस करने के बाद x का वैल्यू मिलेगा. सो वी हैव x इज इक्वल टू a माइनस 3. सो दीज आर द वैल्यूज इन दिस प्रॉब्लम they have mentioned. So period is 6 seconds. We have to find amplitude. Small t is 7 seconds and x का वैल्यू जो हमें मिलेगा है वो दिया है a minus 3. So basically we have to understand that here particle is performing linear SHM from the extreme position. extreme position से यहाँ particle स्टार्ट कर रहा है. दिस इज द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन. ओके यहाँ से लास्ट प्रॉब्लम में भी वहीं से स्टार्ट किया था, तो सेम फॉर्मूला हमें स्टार्ट करना पड़ेगा. x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई. बट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड ओमेगा इज 2 पाई बाई t एंड फाई इज पाई बाई 2. सो नाउ जस्ट put these values. So x is equal to a sin 2 pi capital T, here is a small t, plus pi by 2. okay so अभी हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के हैं. x का वैल्यू है a माइनस 3, a का वैल्यू है फाइंड करने का है इंटू हियर इज अ साइन. Okay 2 pi, what is capital T, that is 6, small t is 7. small t का वैल्यू है 7 सेकंड. कैपिटल T और स्मॉल t में क्या डिफरेंस है, कैपिटल T इज द पीरियड एंड स्मॉल t इज द स्मॉल t क्या है जो टाइम रिक्वायर है वो है स्मॉल t. एंड हियर इज प्लस पाई बाय 2. So this a will come in division. So this will be a minus 3 divided by a. Okay, a minus 3 divided by a. Now I will write this sign 7 pi by 3, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है 2 से डिवाइड किया है. So this will be 7 pi by 3 plus pi by 2. Okay. So now we can write this as a minus 3 divided by a is equal to sin. ओके अभी यहाँ पे जो वैल्यू है
उसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ π/3 प्लस 2π प्लस π/2. See here, π/3 प्लस 2π प्लस π/2, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही सेम है। किस तरह से सेम है ये अभी देखेंगे हम। π/2 के लिए यहाँ पे क्या है, π/2 है। यहाँ जो 7π/3 है उसको मैंने लिखा है π/3 प्लस 2π। सी हियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इसका कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 6π प्लस π मीन्स 7π/3। सो ये जो टोटल वैल्यू है आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन सी दिस वैल्यू इज 7π/3। जब भी पार्टिकल मोशन कर रहा है, so basically just try to understand this half circle is pi and this half circle is pi. For one cycle we use 2π. okay, one cycle ही क्या होता है, 2π होता है। so ये जो 2π है इसे हमें लिखने का ज़रूरत नहीं है। so हम यहाँ पे लिख सकते हैं π/3 प्लस π/2। ये 2π हमने क्यों इग्नोर किया है, बिकॉज 2π गिव्स अस वन कंप्लीट साइकिल। मीन्स पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वो 2π के बाद सेम होगा। यहाँ पार्टिकल है, यहाँ जाने के बाद हाफ सर्कल मीन्स पाई 180 डिग्री, यहाँ आने के बाद 2π होगा। सो ये पोजीशन और ये पोजीशन उसका क्या होता है, सेम। बेसिकली जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2π गिव्स द सेम स्टेट ऑफ पार्टिकल। 2π से हमें क्या मिलता है, पार्टिकल का सेम स्टेट मिलता है। तो प्रॉब्लम में हम वो 2π को इग्नोर करते हैं। सो ये 2π हमने इग्नोर किया, तो यहाँ पे π/3 प्लस π/2 हमें मिला है। सो हियर a-3 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू cos π/3। ओके, क्यों cos π/3? क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सी विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग, sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये जो 90 है उसे ही हम हर बार क्या लिख रहे हैं, π/2। पाई क्या होता है, 180, 180/2 क्या होता है, 90। इन केस ऑफ एंगल पाई का वैल्यू 180 है, 180/2 क्या होता है, 90। सो फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज अ π/2। और ये जो क्या है, ये थीटा है यहाँ पे, sin π/2 प्लस थीटा, sin π/2 प्लस थीटा, दैट गिव्स अस cos थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, π/3 है। cos π/3 का वैल्यू क्या होता है, ओके, cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2। ओके, जस्ट वी आर यूजिंग दिस वैल्यूज हियर। सो दिस विल बी a-3/a इज इक्वल टू हाफ। अभी यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करने का है, अभी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये 2 ऊपर जाएगा, सो वी हैव टू टेक दिस इन ब्रैकेट a-3 और a into 1 दिस विल बी a। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई, दिस विल बी 2a, ओके, एंड 2 3 जा 6, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे a है। सो फाइनली वी आर गेटिंग 2a माइनस a इज इक्वल टू 6, मीन्स a इज इक्वल टू 6। ओके, जो यूनिट है, सब जो यूनिट हमने कौन से यूज़ किए थे, आई थिंक CGS यूनिट यूज़ किए थे। सो इसलिए इसका जो यूनिट होगा प्रॉब्लम में जो मेंशन किया है उसके हिसाब से सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि अदर जो क्वांटिटीज़ है वो हमने डायरेक्टली CGS में ही यूज़ किए। सो फाइनली वी विल गेट CGS unit for amplitude. Okay, so both problems are related to each other. So इस प्रॉब्लम में हमने कैपिटल A दैट इज एम्पलीट्यूड फाइंड किया है। ओके, इस प्रॉब्लम नंबर 5.3।
Next problem, example 5.4. The speeds of a particle performing linear SHM are 8 cm per second and 6 cm per second at respective displacements of 6 cm and 8 cm. Find its period and amplitude. 8 cm per second, 6 cm per second. ओके, ये क्या है? दो वेलोसिटीज़ है, v1 और v2 होंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट्स है जो हम x से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू क्या है? 6 8. सो 8 6 एंड 6 8. So 8 6 and 6 8 are the values. So this is v1, v2, this is x1 and x2. Its unit is centimeter. It's centimeter per second, centimeter per second. So in this problem we have to find period and amplitude. हमें क्या फाइंड करने का है यहाँ पे? पीरियड जो है, what is period? That is capital T and amplitude is capital A. So here just try to understand what is the formula for velocity. v1 का क्या है? v का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. ओके, हियर हम लिख सकते हैं v1 और यहाँ पे x1. v2 का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा रूट a स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर. So this is equation number 1. Equation number 2. Divide equation 1 by equation 2. So now अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा. v1 और v2 का वैल्यू हम जब डिवाइड करेंगे, so this will be v1 by v2 is equal to omega root a square minus x1 square omega root a square minus x2 square. This omega will get cancel. जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया है? डिवाइड किया है. v1 और v2 के जो वैल्यूज़ है उसे हमने क्या किया है? डिवाइड किया है. ओमेगा विल गेट कैंसल. नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज. ओके, सो जो v1 और v2 का वैल्यू है वो क्या है? 8 है और 6 है. यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वेयर माइनस x1 का स्क्वेयर, दैट इज 6 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर माइनस 8 स्क्वेयर. जस्ट पुट दीज वैल्यूज. v1 v2 का वैल्यू हमने 8 और 6 पुट किया और x1 x2 का जो वैल्यू था उसके लिए 6 एंड 8 पुट किया. जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 4 ज़ा 8 and 2 3 ज़ा 6. So we have a 4 by 3. Okay, and here in square root there is a square minus 6 का square 36 and here 8 square is 64. So now ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है इससे हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा. सो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स. सो यहाँ पे हम जब स्क्वायर लेंगे, सो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9. सो अभी इसका स्क्वायर होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 36 एंड a स्क्वायर माइनस 64. जब हम स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर रूट यहाँ पे निकल जाएगा. सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स. सो नाउ ये a स्क्वायर माइनस 64 जो है और ये जो a स्क्वायर माइनस 36 है उसे हम इस तरह से लिखेंगे. a स्क्वायर माइनस 64 9 a स्क्वायर माइनस 36. जस्ट मल्टीप्लाई इट. ओके, 16 इंटू a स्क्वायर दैट इज 16a स्क्वायर minus 16 4 ज़ा 64. So this will be 6 here. 16 6 ज़ा 96 plus 6
दैट इज़ 102. ओके, सो इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करने का है 64 इंटू 16 का. हियर 9 इंटू ए स्क्वेयर दैट इज 9a स्क्वेयर. ओके, 9 6 ज़ा 54, it will be 5. 9 3 ज़ा 27 प्लस 5 दैट इज 32. ओके, अभी हम जो ए स्क्वेयर वैल्यूज है एक साइड लेंगे. 16a स्क्वेयर माइनस 9a स्क्वेयर, यहाँ पे अभी बाकी है माइनस 324. ओके, सो ये माइनस 1024 यहाँ आ जाने के बाद प्लस हो जाएगा 16a स्क्वेयर माइनस 9a स्क्वेयर दैट गिव्स अस 7a स्क्वेयर. यहाँ पे माइनस है प्लस है तो सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. 1024 324, so 4 minus 4 0, 2 minus 2 0, 10 minus 3 7, so this is 700. ओके, सो आप अभी देख सकते हैं 7a स्क्वेयर इज इक्वल टू हमें मिला है 700. ओके, सो फॉर दिस यू कैन राइट a स्क्वेयर इज इक्वल टू 700 बाय 7, सो दिस विल बी 100. a स्क्वेयर का वैल्यू 100 है, टेकिंग स्क्वेयर रूट, सो a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये जो a का वैल्यू हमें मिला है वो मिला है 10 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड. ओके, एम्पलीट्यूड के लिए ये हमें वैल्यू मिला है. Example 5.5. The maximum velocity of a particle performing SHM is 6.28 centimeter per second. Okay, the maximum velocity of a particle performing SHM is 6.28 centimeter per second. If the length of its path is 8 centimeter, calculate its period. जो लेंथ ऑफ पाथ दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर. कैलकुलेट इट्स पीरियड. ओके, हमें क्या फाइंड करने का है यहाँ पे? पीरियड फाइंड करने का है. सी हियर, सो 6.28 इज गिवन, दैट इज वी मैक्स वैल्यू 6.28 एंड जो पाथ लेंथ दिया है, पाथ लेंथ होता है 2a, दैट इज 8 सेंटीमीटर. आई थिंक CGS यूनिट इज देयर, सेंटीमीटर इज देयर. ओके, राइट. सी हियर, इट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, CGS यूनिट. पाथ लेंथ क्या होता है? सी हियर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? a होता है, दैट इज एम्पलीट्यूड. लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 2a होगा. और ये जो टोटल पाथ है उसे ही हम क्या कहते हैं? पाथ लेंथ. इफ 2a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी a? दिस विल बी 4 सेंटीमीटर. ये जो वैल्यू दिया था मुझे पाथ लेंथ का, उससे हमने क्या निकाला? पहले एम्पलीट्यूड निकाला है. और इस प्रॉब्लम में हमें कैपिटल T का वैल्यू फाइंड करने का है. सो व्हाट दे आर आस्किंग अस? कैलकुलेट इट्स पीरियड. तो हमें क्या फाइंड करने का है? पीरियड का जो वैल्यू है वो यहाँ पे फाइंड करने का है. सी हियर, व्हाट इज वी मैक्स? वी मैक्स का फॉर्मूला हमने देखा था, मैक्सिमम वेलोसिटी हमने देखा था
मीन पोजीशन को मिलता है। मैक्सिमम वेलोसिटी जब हमने निकाला था, मीन पोजीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये हमने देखा था। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के जो सॉल्व किए थे, उसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट मीन पोजीशन एंड इट्स वैल्यू इज ए ओमेगा। क्या होता है? ए ओमेगा। लेकिन यहाँ पे जो ओमेगा है उसका क्या फॉर्मूला है? 2π/t एंड हियर इज वी मैक्स। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज। ओके, अभी हमारे पास जो वैल्यूज है यहाँ पे है 6.28, यहाँ पे a का वैल्यू है 4, ओके, हियर इज 2 एंड पाई का वैल्यू क्या है? 3.14। कैपिटल T हमें यहाँ पे निकालने का है। सो हियर यू कैन सी दैट हियर इज a 6.28, here is 4 into 2 into 3.14 is 6.28 divided by t. So this 6.28 and this 6.28 will get cancel. ये 2 से हम जब 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ भी वैल्यू क्या मिला है? 6.28. So both these values will get cancel and from these you can easily find the value of capital T. ओके, तो अभी हमारे पास क्या है? 1/4 इंटू 1/t। जब हम यहाँ पे t को लेंगे सो 4 इंटू 1 दैट इज 4, सो सेकंड। सो t का जो वैल्यू हमें यहाँ इस प्रॉब्लम में मिला है वो है 4 सेकंड। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। क्या मिला है वैल्यू हमें? 4 सेकंड। ओके, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। सो लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एग्जाम्पल 5.6. ओके, 5.6. सो एग्जाम्पल 5.6 इज the maximum speed of particle performing linear SHM is 0.08 meter per second. V max का वैल्यू हमें दिया है। फर्स्ट आई विल राइट इट। V max का वैल्यू ओके 0.08 एंड A max का वैल्यू भी है 0.32. ओके, see here once again, the maximum speed of particle performing linear SHM is 0.08 meter per second. If its maximum acceleration is 0.32 meter per second square, calculate its number 1 is period and amplitude. T और A का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करने का है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड पीरियड। Okay, period, that is capital T, and the second is amplitude, that we are denoting by capital A. जो यूनिट यहाँ पे है वो कौन से यूनिट है? MKS यूनिट दिए है। ओके, see here. So first we have to find the period. So we have the formula for the acceleration and velocity. So जो acceleration and velocity का जो formula है ये हमें अभी मालूम होना चाहिए। तो जो formulas है ऑलरेडी हमने डिराइव किए हैं। V max एंड A max का फॉर्मूला क्या होता है? हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन है O मैक्सिमम जब होता है उसका वैल्यू होता है A ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ पे V max का वैल्यू होता है A ओमेगा। ओके, ये किस इक्वेशन में हमने डिराइव किए हैं? जब हम एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन के वैल्यू को कंपेयर करते हैं, कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगा,
कहाँ पे वैल्यू मिनिमम होगा, वहाँ पे हमने देखा था कि a omega square is a maximum value and v max is the maximum value for the velocity. So here I will write a max upon v max. यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो हमने कैपिटल A से डिनोट किया है. सो आई विल राइट दिस a ओमेगा स्क्वायर इंटू a ओमेगा. जब हमने सॉल्व किया था तब जो एम्पलीट्यूड है वो हमने कैपिटल A से डिनोट किया है, इसलिए मैंने वो कैपिटल A लिखा है. सो दिस A एंड A विल गेट कैंसल. यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा है. So this one omega will get cancelled, so we have omega. Okay, so from this you can see here ये a max का जो वैल्यू है वो है 0.32 डिवाइडेड बाय v max का वैल्यू है 0.08 और जो ओमेगा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय t. ओके, सो ये पॉइंट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8. यहाँ पे है 2 पाई, ओके, डिवाइडेड बाय है t. सी हियर 8 4 जा 32. सो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 2, ओके, पाई t. सो दिस विल बी 2 2 जा 4. So we get 2 is equal to pi by t. ओके, क्या किया है मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है 8 4 जा 32. अब जब यहाँ पे 4 मिला था हमें तो ये जो 2 है उसे मैंने नीचे लाया और फिर 2 से डिवाइड किया. सो वी हैव 2 इज इक्वल टू पाई बाई टी. सो हमें t निकालना है. सो पाई अपॉन 2 इट विल बी. सो पाई का वैल्यू क्या होगा 3.14 डिवाइडेड बाय 2. सो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे 7 मिलेगा हमें. सो दिस विल बी अवर आंसर. कैपिटल टी का आंसर जो हमें मिला है 1.57 सेकंड. सो यू हैव टू डू सच अ सिंपल कैलकुलेशन. ओके, ये जो कैलकुलेशन है इजी है, उसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड. अभी हमें जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू फाइंड करने का है. सी हियर वी मैक्स का जो फॉर्मूला है वो है a ओमेगा. ओके, सो हियर वी कैन राइट a इंटू ओमेगा का फॉर्मूला क्या है 2 पाई बाय टी. a को हमने a लिखा है, ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई बाय टी यहाँ पे पुट किया है. सो वी हैव v मैक्स इज इक्वल टू a इंटू 2 पाई बाय टी. अभी हम वैल्यू पुट करेंगे. आई थिंक v मैक्स इज इक्वल टू 0.08. ओके, सो जो v मैक्स का वैल्यू है कितना है 0.08 ही है. तो यहाँ आपको लिखने का है 0.08. a हमें फाइंड करने का है. ओके, सो देर इज 2 पाई इन अपॉन t. ओके, कैपिटल T का वैल्यू, पहले पाई का वैल्यू हम लिखेंगे 3.14 डिवाइडेड बाय कैपिटल T कितना है 1.57. सो हियर 0.08 a इंटू 2 इंटू ये जो 1.57 है और 3.14 है, इससे हम क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड होगा ये. सो ये 2 से डिवाइड होगा, इसलिए 1.57 2 जा 3.14. सो दिस विल बी 0.08 a इंटू 4. ओके, a इंटू 4. सो फाइनली
you can write the answer. 0.08 is equal to a by 4. okay, this is 4. so a is equal to, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, so 4 to the 8. so this is our answer in मीटर. ये जो आंसर होगा मीटर में होगा क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर था. ओके, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर 0.02 मीटर. ओके, आप सेंटीमीटर में इसे लिख सकते हैं. इफ़ यू वांट दैट विल बी 2 सेंटीमीटर. ओके,